and I was asked to minister to them. और उनको बाइबल के बारे में या मसीहत के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया कि मैं उनकी सेवकाई करूं। And so I did a quick survey among the people. और फिर मैंने अचानक से कुछ सर्वे किया उनको जानने के लिए। And suddenly I took a survey, and the men felt in the survey that it is okay to hit their wives if they are misbehaving. और उन 40 लोगों में से कई पुरुषों ने ऐसा बोला, उस सर्वे के द्वारा मुझे मालूम पड़ा कि कई पुरुष मानते थे कि अगर स्त्री जो है गलत व्यवहार करती है तो उसको मारना ठीक है। And I was shocked, and I said, okay, wait. And then I asked a few more questions to the women, which I cannot reveal right now. और उन्होंने बोला, फिर मैं तो अचानक से अचंभित हो गया और मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने स्त्रियों से भी कुछ प्रश्न पूछे जिसके जवाब मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता। And when I continued to ask some questions about family, it was super exciting to hear how dysfunctional families can be if Jesus is not in the home. और जब मैंने उनको मैं सवाल पूछता रहा, प्रश्न पूछता रहा, तब मुझे पता चला कि अगर यीशु मसीह परिवार में नहीं है तो परिवार अपनी योजना से कितना दूर है, कितना कार्य रहित है। When Jesus with his character, with his beauty, with his glory is not resident in the home, it can be hell. जब यीशु मसीह अपने महिमा के द्वारा हमारे परिवार में अगर उपस्थित नहीं है तो हमारा परिवार नरक समान बन सकता है। And I had prepared a completely different set of message for this morning. और आज सुबह इसलिए मैंने संपूर्ण अलग तरीके का संदेश तैयार कर रखा था। And so after the family counseling session and after the evening convention, I asked myself, if the people who don't know Jesus have a family like this, what about families who know Jesus? और फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर मैं उनकी परामर्श कर रहा हूँ जो लोग यीशु मसीह को जानते नहीं हैं, अगर उनके परिवार में ये हालत है तो वैसे परिवार जो यीशु मसीह को जानते हैं उनकी क्या हालत होगी। And I definitely want to say it with not with pride but with much sadness in my heart. That was to make you up, okay? Much sadness in my heart that it is not much different from what they used to be. The families are not much different the way they function today. और मैं ये बताना चाहता हूँ गर्व के साथ नहीं लेकिन बहुत दुख के साथ कि जिन परिवार में पहले यीशु मसीह नहीं था और अब परिवार में यीशु मसीह आया है, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। And it is sad. It cannot be like this. If you have received Jesus in your heart, if you have received forgiveness for your sin, if your lives have been changed, the family has to be the reflection of a godly, present, God-present Emmanuel kind of home. और अगर मुझे ये बात सुनकर बहुत दुख भी होता है कि अगर यीशु मसीह आपके जीवन में आया है, आपने उसको उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपके परिवार में भी बदलाव आना चाहिए। Last week, a sister after the church came and said, "Please pray for my husband who has taken baptism plus a few things," and I said, this needs addressing, this needs talking into and praying into. और फिर पिछले हफ्ते एक बहन आई थी, उन्होंने बोला कि मेरे पति के विषय में प्रार्थना करें, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने ये किया है, वो किया है, और फिर मुझे पता चला कि उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बात मुझे उनके साथ करनी पड़ेगी। And so knowing that we have communion, we have very little time, turn with me to 1 Peter chapter 3 this morning. बहुत कम समय है, इस समय के दौरान हम पहला पत्रस उसके तीसरे अध्याय को And this talks about from the verses 1 through 7 talk about family, men and women. और तीसरे अध्याय की 1 से 7 आयत में पति और पत्नी के विषय में लिखा है। And I understand this is not a wedding and it's not a wedding sermon, but it is appropriate. I feel that God would change the word that He had given to me earlier and I had prepared, and we would talk about family this morning. मुझे मालूम है कि ये कोई विवाह की सभा नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि परमेश्वर ने जो संदेश मुझे दिया था उसको बदला है और उसके बदले में वो कुछ बहुत अद्भुत देने जाने वाला है। मेरे साथ बोलिए, आत्मिक परिवार, अच्छा परिवार, अच्छा परिवार, आत्मिक परिवार. Okay, so we're talking this morning for a few minutes about how a godly family needs to be functioning. और आज सुबह हम कुछ देर इस विषय में बात करेंगे कि एक मसीही परिवार में क्या होना चाहिए. How about we read the verses together this morning, okay? From 1 Peter chapter 3 verses 1 through 7, we read it together. पहला पत्रस तीसरा अध्याय 1 से 7 आयत को हम साथ में पढ़ेंगे. I would request you to please stand up in reading the word of God together in your own language. हम सब साथ में खड़े हो जाएंगे और अपनी अपनी भाषाओं में बाइबल पढ़ेंगे. 1 Peter chapter 3 verses 1 through 7 we will read it aloud and together.
पहला पत्रस उसका 3 अध्याय 1 से 7 पद हम साथ में पढ़ेंगे। All right, ready? You've got it? मिल गया आपको? 1, 2, 3 चलिए पढ़िए। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को न मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां थी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। 7 आयत मिलकर, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पतियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। मिलकर आमीन बोलिए जोर से। बैठ सकते हैं आप लोग। ओके, बिफोर टॉकिंग टू द सिस्टर्स, लेट मी टॉक टू द मेन। और इससे पहले कि मैं बहनों के साथ बातचीत करूं, मैं भाइयों के साथ कुछ बात करना चाहता हूं। And quickly I'll give you some keys. It's not a preaching, it's not something, I'm just giving you handles so you can think about it and make your family a godly family. कुछ चीजें मैं आपको देना चाहूंगा, कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ कुंजियां जिसकी वजह से, जिसको पकड़ के आप अपने परिवार को अच्छा परिवार बना सकते हैं। The key is love your wives, brothers. पहली कुंजी है कि आप अपने पत्नी से प्रेम करें। Love your wives. Ephesians says as Christ loved you. और इफिसियों की पत्री में लिखा है कि अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करें जैसे यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। And I would add, love them in a manner that they can understand that you are loving them. और इस तरह से प्रेम करें कि वो आपको समझ सके कि आप उनको प्रेम कर रहे हैं। Love them the way Jesus would love them. इस तरह से प्रेम करें जैसे यीशु मसीह उनको प्रेम करेगा। All right, and it says here the second thing, बुद्धिमानी से, I don't know what it says in English, please help me. बुद्धिमानी से अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करो। 7 verse 7, I'm talking from 7 now. According to knowledge. Yes, बुद्धिमानी से अपनी जिनकी शादी नहीं हुई है, वो बिना फीस के मैं आपको प्री मैरिटल काउंसलिंग दे रहा हूँ, फीस बाद में लूंगा। जिनकी शादी हो गई है पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग है, ठीक है। ओके, तो अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करिए। In verse 7, behave or be with your wife, consider your wife। आपको लगता है आपकी पत्नी को अक्ल नहीं है, कम से कम आपको है। ये आप कैसे उनको ट्रीट करेंगे उससे मालूम पड़ेगा कि आपको भी अक्ल है कि नहीं है। If you think your wife does not have any wisdom and you think you have all the wisdom, then at least the way you behave with them will tell how you have wisdom or not। कमाने वाले भाइयों, न कमाने वाले भाइयों, घर में रहने वाले भाइयों, काम पे जाने वाले भाइयों, मजदूर भाइयों, बिजनेस भाइयों, प्रभु का कलाम आपसे कहता है अपनी पत्नी से बुद्धिमानी से व्यवहार करो। Whether you are earning or not, whether you have a job or you are jobless, the word of God says love your wife according to तो पहला है प्रेम करें अपनी पत्नी से। The first thing is love your wives। इसका मतलब जवानों, अगर विवाह नहीं हुआ तो प्रेम करने की कोशिश ना करें, फेल हो जाओगे। That means all the unmarried people, if you haven't got married, do not try to love your तो wife। फिर हम प्रेम कब करेंगे? So when do we love? शादी के बाद, after marriage। ओके, ज्यादा नहीं बोले, समय नहीं अपने पास, इसलिए प्रेम करिए अपनी पत्नी से। Love your wives। वो तो लायक ही नहीं है प्रेम करने के। But sometimes you may think my wife is not worthy of love, she doesn't deserve my love। आप लायक थे क्या? यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया, तो आपको भी अपनी पत्नी से प्रेम करना है। The question is, did you deserve the love of God? And if still Jesus can love you, you are asked to love. You are told to love your wives। अपनी पत्नी से प्रेम करें, दूसरा बुद्धिमानी से उनसे व्यवहार करें। Love your wife as Jesus loved, and love her according to knowledge, with wisdom। Yes, तीसरा उन्हें निर्बल पात्र, इधर क्यों देख रहा हूं मैं, उधर देख रहा हूं, सॉरी। उन्हें निर्बल पात्र जानकर उनसे बर्ताव करें। The third is consider them weaker vessels and love them। आपने देखा है कभी कांच के बर्तन जब बक्सा में ले जाते हैं, उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? हैंडल विद केयर, और ऊपर लिखा था राइट साइड आप मत गिराना, टोकना, तरीके से ले जाना, गिरेगा तो टूट जाएगा, फिर बनेगा नहीं। You have seen how they carry the glass vessels, how they take these utensils from one place to another। They always write on a box
पुरुषों, आपको समझना है ये निर्बल पात्र हैं। No matter how many times they make mistake, man, you need to understand that women are weaker vessels. कितना भी आप कर ले, इनको जानना है प्रभु इनको स्पेशल अनुग्रह दे रहा है और आपको भी इनको स्पेशल अनुग्रह, इनको इतना जगह देना पड़ेगा। And you need to know that even though they are weaker vessels, God gives them special grace, and even you have to give them special place. अगला पत्रस लिखता है उनका आदर करो। पुरुषों, अपनी अपनी पत्नी का आदर करो। Peter says, husbands, respect your wives. ये क्या मतलब हुआ? हम भारत के हैं, हम मर्द हैं, आप हमको बोल रहे हो आदर करने के लिए? उसको मेरा जूता चाटना चाहिए। You may wonder why should I do that? Because I am an Indian and I am an Indian male. My wife has to be at my feet. बाइबल मैं नहीं बोल रहा हूँ साहब, बाइबल बोल रही है अपनी अपनी पत्नी का आदर करो। The Bible says, respect your wives. कुछ लोगों का चेहरे का शेप बिगड़ रहा है, कुछ नीचे देख रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बाइबल से बात कर रहा हूँ। पहला, प्रेम करिए अपनी पत्नी से। First thing is love your wives. नंबर 2, बुद्धिमानी से उनके साथ रहिए। Second thing, act in accordance with your knowledge. पत्र सिखा रहा। नंबर 3, निर्बल पात्र जानकर उनको संभालिए। Third thing, take care of them as they are weaker vessels. जिनकी शादी नहीं हुई है, कुछ भी आप नहीं कर सकते शादी से पहले, इसलिए आप सोचो ही मत, लिख लो नोट्स, बाद में काम आ जाएगा। चौथा, उनका आदर करिए आप। And the fourth thing, respect them. लेकिन एक और चीज लिखा है, जीवन के वरदान के सहवारिस उनको समझिए। Co-heirs, they are co-heirs of the grace that God has given to you. And then it says in verse 7, it says they are co-heirs. So इसका मतलब ये है कि प्रभु के वरदान के वारिस है वो। तराजू में कितने पलड़े होते हैं भाई लोग बोलिए? How many sides you find the balance? आपके जीवन को देखने से तो लगता है एक ही पलड़ा आपके जीवन में, नहीं, 2 पलड़ा। प्रभु बोल रहा है दोनों पलड़े में आशीष चाहिए, तो पति और पत्नी को आपको प्रभु का अनुग्रह चाहिए, तो आपको उनको अपना संगी वारिस, अपना संगी आशीष पाने वाली समझना पड़ेगा। The Bible says if you want blessing on both the sides of your balance, then you need to consider your wives as co-heirs in the kingdom of God. और एक और चीज उसमें बाद में लिखी, छठी बात, तुम ऐसा जीवन तुम्हारी पत्नियों के साथ नहीं बिताओगे तो तुम्हारी प्रार्थनाएं छत में चिपक सकती है, ऊपर नहीं जाएगी, ऐसा लिखा है आपकी बाइबल में। And one more thing the Bible says about loving your wives, and it is if you can't live with your wife as the Bible commands you to live, then your prayers will be hindered. अगर आपकी कुछ प्रार्थना है शादीशुदा भाइयों जो जवाब नहीं मिल रहा है, हो सकता है आपके वो जो वायरिंग है उसमें कहीं पर स्पार्किंग आ रहा होगा या तार जल गया होगा। Especially to the unmarried people, if your prayers about marriage are not being heard, if No, you're not prayers after marriage. if your prayers after marriage are not being heard, that means there is something wrong in your relationship with God. विवाहित पुरुषों, अपनी अपनी पत्नी को संगी वारिस जानकर, प्रभु से दी हुई निर्बल पात्र जानकर ऐसा जीवन बिताओ ताकि आपकी सारी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर आपको प्रदान करे। For married people, the word of God says, consider your wives as co-heirs with you. Consider them weaker vessels and take care of them, respect them, and when you do that, your prayers will be answered. पुरुष लोग जल्दी जल्दी मेरे साथ बोलिए, हमें प्रेम अपनी अपनी पत्नी से करना है, बोलिए। Let's do it in All the Hindi. man can say, Yes. I need to love my wife. बोलिए, मुझे प्रेम करना है अपनी पत्नी से। I need to love my wife. नहीं आए तो भी बोलिए ना, आने वाली है। बोलिए, मुझे प्रेम करना है अपनी पत्नी से। I need to love my wife. नंबर 2, अगर आप नहीं बोलोगे तो दुआएं रुक जाएगी, फिर फास्टिंग प्रेयर करवाना पड़ेगा। And if you don't say this, you will have to pray harder, you will have to fast. बोलिए, मुझे प्रेम करना अपनी पत्नी से, I need to love my wife. मुझे बुद्धिमानी से रहना है उसके साथ। I need to live with her in accordance नंबर with 3, knowledge. निर्बल पात्र जानकर, बोलो बोलो, निर्बल पात्र जानकर, I will consider her weaker विजय भाई, vessel, निर्बल पात्र जानकर knowing that she is a weaker मुझे vessel. व्यवहार करना है। I will act accordingly. नंबर 4, उसका आदर करना है, बोलिए। Before I am going to respect her. नंबर 5, उसको मेरे साथ आशीष पाने वाली मुझे समझना है, बोलिए। I will उसको, consider her co-heir. ऑलराइट। और छठी बात क्या है? And the sixth thing, मेरी प्रार्थना रुक ना जाए, इसलिए सब कुछ पूरा करना है, बोलो भाई लोग। I will do everything that is commanded to me so that my prayers will be answered. लेकिन अब बहनों के लिए भी यही सारी बातें लिखी है। But then there are also some commands for the wives. ध्यान से सुनिए वापस, वहां पर पहले पत्रस के अंदर आप ये सारी मैं संक्षिप्त में आपको मैं दे रहा हूं, अंत में मैं रैप में 3 बातें बताऊंगा, लेकिन तीसरे अध्याय में लिखा है, पहली बात, पत्नियों आपके पति के अधीन रहना है आपको। And for the wives, the word of God says in the first verse itself, it says, submit to your husband. पादी साहब यही तो नहीं होता है, बाकी सब कर सकती हूँ, रोटी बना सकती हूँ, जूता पॉलिश कर सकती हूँ, प्रेस कर सकती हूँ, लेकिन अधीन मैं नहीं रह सकती। And you might say, Pastor, I'm able to do
everything. I prepare food for her. I can clean things for him, but I cannot submit myself to him. लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, इतना ही बोलना चाहता हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, आपको अधीन रहना पड़ेगा। But this is what I want to tell you. You will have to be submitted. क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन सिखाता है। Because the word of God says so. अधीन रहना गुलामी नहीं है। Submission is not equal to slavery. अधीन रहने में आजादी है। But submission is about freedom. अधीन रहने का मतलब है जो कुछ निर्णय ले रहे हैं परिवार में वो आपके निर्णय, मैं आपके अधीन हूँ, इसका जिम्मा भी आपको, बिगड़े तो भी महिमा आपको, बने तो भी महिमा आपको, मैं इसके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके अधीन। Submission basically means when a wife says that you are taking the lead and you are taking a decision and I am with you, whether things work out well or even if they don't work out well, I am always with you. दूसरी बात, अधीन के साथ साथ आपका चाल चलन भय, बाइबल लिखा है पढ़िए तीसरे अध्याय के अंदर, भय सहित पवित्र चाल चलन आपका होना चाहिए। And along with that in chapter 3 it says your life has to be a life of purity. भय सहित, भय मतलब डर नहीं, ये प्रेम और डर और आदर का मिश्रण है। भय सहित आपका जीवन परिवार के अंदर आपके परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। You will have to live a life of fear. Fear doesn't mean that you're scared of something, but it's a mix of love. It's a balance of love, respect, and fear, and that's the life that pleases the Lord. बहनों माताओं, हम आपको सिखाना चाहते हैं आपका जीवन, आपका चाल चलन आपके बच्चों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके कलीसिया के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। My dear sisters, mothers, and dear wives, I want to tell you that your life has to be so that it pleases God and it's an exemplary life for your neighbors. लेकिन दूसरी आयत के अंदर एक और बात लिखा है, वो भी मैं आपको याद दिलाऊं। ये तीसरी बात पे बोल रहा हूँ, बिना वचन के, आपके बाइबल में देखिए ढूंढिए, बिना वचन के लिखा है, मतलब मुंह पे प्लास्टर लगाना पड़े तो भी आप बिना वचन के प्लास्टर लगा के भी आप मुंह बंद रखकर भी अपने परिवार को आशीष दे सकती है। हर जगह आपको मुंह खोलकर गड़बड़ी फैलाने की जरूरत नहीं है। And one more thing that I want to tell you is you do not need to open your mouth and create problems in places. You can also keep quiet and you can bless others. That means बिना वचन के आपका चाल चलन आपके पति को प्रभु के पास लेकर आना चाहिए। That means even without a word, your behavior should lead your husband to Christ. आगे चल रहे जल्दी, अलंकरण बाहर का नहीं, 16 श्रृंगार सिर से लेकर अंगूठे तक नहीं, 16 श्रृंगार आपके दिल के होने चाहिए, आपके जीवन के होने चाहिए। And as you move further, the word of God says it should not be outward adornment, but your heart should be adorned for the Lord. अरे जितना रंग लगाना लगाओ, जितना बाल करना करो, कुछ भी करो, बाइबल कह रही है पूरी आजादी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीज आपको सुंदर नहीं बनाएगी। आपका अंदर का मनुष्यत्व, आपके बोलने की तहजीब, आपका उठना बैठना, आप कैसे चाय पिलाते हैं, कैसे बुलाते हैं, कैसे बात करते हैं, ये चीज आपको सुंदर बनाएंगे। Bible tells you that you have freedom to adore yourself. You have freedom to wear the nail polish that you want. You want to cut the hair, you can. But also Bible says that this won't help you because एक्स्ट्रा ट्रांसलेशन था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया लगा। Because ultimately what helps you is your inner self. Is how you beautify your inner self. मैं इतना ही बोलता हूँ, जितना ब्यूटी पार्लर की देवी को आप देते हैं, उतना ध्यान अगर परमेश्वर को दे देंगे, आपका जीवन और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा। All I want to tell you is the kind of attention, the time of attention that you give beautifying yourself, if the same attention you give to the Lord, the Lord will make your life beautiful. गुस्सा आ रहा, हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया। I know I'm annoying some, but it's okay, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन बोल रहा है श्रृंगार बाहर का नहीं, बोलिए श्रृंगार बाहर का नहीं, बोलिए अंदर का होना चाहिए। ओके, उतना ही नहीं, अधीन रहना है, अपन को चुप रहना है, पवित्र चाल चलन रखना है, श्रृंगार बाहर का नहीं अंदर का रखना है। उतना ही लिखा है पति का आदर करो, मतलब उसको मालिक स्वामी, अभी स्वामी कहने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मुश्किल होगा कहने के लिए, कहोगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ होगी इसलिए छोड़ दो। हम उसको ऐसे बोल रहे हैं अपने अपने पति का आदर तो करो, आदर तो। In addition to all that, the word of God also says respect your husbands, keep them in reverence. कहीं का नहीं पालतू है, रोज फोन कर करके अपने उधर वटियाड़ी मत बोलो, जैसा मिला शुक्र करो, मिल तो गया। Give thanks to the Lord for your husband, no matter what kind of person he is. ये सारी चीजें बाइबल के अंदर लिखी है साहब। This is
is what the word of God says. लेकिन इन दोनों को पक्ष को जोड़कर मैं तीन बातें दोनों को कहना चाहता हूँ, पूरे परिवारों को कहना So चाहता I हूँ. want to tell this thing to family. I want to Mix pick these them. points and put them I together. don't want to and tell separate something for men, something for men, but together, number one, let us love one another. Husbands and wives, love one another as Christ has loved बहनों us. और भाइयों का अलग अलग करके नहीं, लेकिन दोनों के मुद्दों को जोड़ के एक साथ में आपके परिवार के लिए बताना चाहता हूँ. पहली बात, पति और पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें. हमें कैसा प्रेम करना है? इलू वाला नहीं, लेकिन जैसे मसीह ने प्रेम किया वैसे हमको प्रेम करना है. What kind of love we need to have for one another? It's the kind of love that Jesus had for us. मुझे मालूम है चर्च के बाद जाके बच्चे लोग बोलेंगे चर्च में तो बोला था प्रेम करना है इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं. Some of you might say, okay, we are taught to love, so we'll try it out. मैं पैर पकड़ूं, हाथ पकड़ूं, गला भी दबाऊं, मत करना ऐसे आप. लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जैसा मसीह ने प्रेम किया वैसे हमको एक दूसरे से प्रेम करना है. I want to encourage you not to try anything like that. I want to encourage you to love your husbands and your wives as Christ loved अगर us. आपको लगता है वो प्रेम के लायक नहीं है या नहीं है, स्त्री या पुरुष, याद रखना अगर मसीह ने मुझसे प्रेम किया तो मुझे भी मेरी पत्नी से, मेरे पति से प्रेम करना है. You may think that my husband or my wife does not deserve that kind of love, then always remember that Jesus loved you even when you did not deserve it. So you need to love your husband or wife. बहुत समय पहले की बात है, एक जनाब अपनी पत्नी के लिए घर पर आकर उसके जन्मदिन में उन्होंने बोला मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ. And once a man told his wife, I have brought a gift for you. और पत्नी बहुत खुश हो गई. जिंदगी में कभी उनको याद भी नहीं था कि इसका जन्मदिन कब है, लेकिन आज जब इसने बोला साहब ने मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, वो बहुत खुश हो गई. The wife was very glad because she never thought that my husband remembers my birthday, but on that particular day, this husband brought a gift, and the wife was very glad. और जब गिफ्ट उसको दिया तो बहुत उसने थैंक यू बोला, पैर छुआ, गला छुआ, पता नहीं सब कुछ करने का बोला. बहुत मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों लाए गिफ्ट करने. The wife started touching his feet and said, "Thank you, really, thank you so much. I don't know why did you buy this for me. ओह जरूरत नहीं थी, मैं तो जानती हूँ आप मेरे से वैसे ही प्रेम करते I हैं. know you love me. You didn't need to show me by giving me this gift." उसने बोला कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं विशेष लाया. And the husband said, "Do not. It's okay. I just brought it for you." सबके सामने नहीं खोला. बहन जी किचन में गई और बर्तन बजाते बजाते धीरे से उसने गिफ्ट खोला. And the wife रुका नहीं गया did उसने. not. The wife did not open the gift in front of others, but she went to her kitchen and she opened the gift. और जैसे डिब्बा खोला उसके अंदर अंकल जी के जूते रखे थे नए वाले. And when she opened the gift, it was her husband's shoes. He had bought himself a pair of shoes and he had gifted it to his wife saying, since you love me, this is my love gift to you. और वो जूते तो उसने अपने लिए खरीदे थे, लेकिन अब उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट दे दिया और बोला कि तू मुझसे प्रेम करती है तो मैं ये तुझे दे देता हूँ. अंकलों आंटियों से ऐसा नहीं, अपनी अपनी पत्नी को जो उनको चाहिए वो ला के दो, तब उनको मालूम पड़ेगा संदीप जी आप शालिनी मैडम से प्रेम करते हैं. If your wives want something, you buy it for them and they will know that you love them. संदीप जी बोल रहे हैं खरीदता तो हूँ मैं, हमेशा खरीदता हूँ मैं. And Sandeep ji might be saying, I buy it always for my wife. अरविंद जी बोल रहे हैं पीछे से मैं हर साल क्या क्या नहीं करता हूँ. And Arvind ji might be saying, I buy so many things every year. अंजू मैडम बोल रही है साड़ियाँ छोड़ दो, कभी गुलाब लाए हो मेरे लिए. And Anju madam might say, you always buy saris, but I want a rose. अंजू मैडम बोली साड़ी चाहिए या गुलाब चाहिए आपके हस्बैंड से. आप बुद्धिमानी है तो बोलेंगे दोनों चाहिए. बिल्कुल. पुरुषों अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने प्रेम किया है. Husband love your wives as Christ loved us. पत्नियों अपने पति से प्रेम करो जैसा मसीह ने आपसे प्रेम किया. Wives, love your husband as Christ loved us. परस्पर प्रेम करना है. Love one another. वो शराब पीते होंगे, He might be a drunkard. वो जुआ खेलते होंगे, He might be gambling. वो प्रभु में नहीं होंगे, Perhaps he is not in the Lord. लेकिन बाइबल कहता है तुम्हारा पवित्र चाल चलन, तुम्हारा बिना वचन का, तुम्हारा चुप रहकर तुम उसको प्रभु के भवन में लेकर आ But the सकते. word of God says, even without speaking a word, by your behavior, you can bring him to Christ. आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देगा. Your life has to give glory to the Lord. दूसरा शब्द मैं आपको कहना चाहता हूँ, न केवल हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, लेकिन एक दूसरे के अधीन रहना है. Not that we need to just love one another, but we also need to submit to one another. पुरुष ऊंचा है और स्त्री नीचा है. पुरुष ऊंचा है स्त्री नीचा है, ऐसा नहीं है. Husband is high up and woman is low somewhere there. ऐसा नहीं है कि पुरुष बहुत ऊंचा है, देवता है, और स्त्री
गुलाम में ऐसा नहीं है बाइबल के It is आधार। not that the husband is a master and lord while the wife is a slave. लेकिन बाइबल के आधार पर बाइबल सिखाती स्त्री और पुरुष बराबर है, फिर भी एक दूसरे के अधीन रहने के लिए प्रभु आज सुबह आज्ञा But देता है। Bible teaches us that men and women are equal. They both have equal personal authority. But then again, they need to submit to one another. If you look at the Trinity, the Father submits to the Son submits to the Father, and the Holy Spirit submits to the Son and the Father. Nobody is pressurizing them to submit to one another, but out of joy, not out of duty, but out of joy and celebration, they submit to one another. That is our model. That is the way we need to be treating one another. त्रिएक परमेश्वर को अगर आप देखें तो पिता जो है वो पुत्र जो है वो पिता के अधीन होता है, पवित्र आत्मा जो है पिता और पुत्र दोनों के अधीन होता है, और तीनों एक दूसरे के अधीन होते हैं। बिल्कुल जिम्मेदारी है इसलिए हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आनंद के साथ वो एक दूसरे को अधीन होते हैं। The Father is not forcing the Son to submit, और पिता पुत्र के ऊपर ऐसा दबाव नहीं डाल रहा है कि मेरे अधीन हो जा, but the Son always says, I only do what the Father tells me. लेकिन पुत्र हमेशा ऐसा ही कहता है कि जो मुझे पिता करने को कहता है वही मैं करता हूँ। The Holy Spirit is not being forced to do something for Jesus. It is not a force, but the Holy Spirit with joy says, I will only do the will of the one who sent me. पवित्र आत्मा के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता कि ऐसा ही करो, लेकिन पवित्र आत्मा खुद ऐसा कहता है कि मैं अपनी इच्छा के साथ, आनंद के साथ मुझे जो कार्य करने के लिए भेजा गया है वो करूंगा। And that is the model a Christian family should be exhibiting, where the husband honors the wife and the wife honors the husband. और इसी प्रकार का आदर्श हमारे मसीही परिवार में लागू होना चाहिए, जहाँ पर पति पत्नी को अधीन होता है और पत्नी पति को अधीन होती है। And it is not out of compulsion, it is not out of anger, it is not out of something that is forced upon them, but with joy we come under one another. और इस अधीनता में कोई दबाव नहीं डाला जाता है, आपको करने के लिए आपके ऊपर बहुत सारा दबाव नहीं डाला जाता, जबरदस्ती नहीं कराया जाता, लेकिन आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए आनंद के साथ एक दूसरे को अधीन होते हैं। When there is love, submission is easy. और जब आप एक दूसरे को प्रेम करते हैं तब अधीन होना आसान हो जाता है। When love is missing, submission can become slavery. जब प्रेम नहीं है तो फिर वहां अधीनता के बदले गुलामी आ जाती है। And that is why the first thing we are learning this morning from 1 Peter is that we need to be loving one another in the Christian family. और इसलिए पहले पत्रस के 3 अध्याय से पहली बात जो आज हम सीख रहे हैं वो है कि परिवार में हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। Number 2, we need to be honoring, submitting to one another. और दूसरी बात यह है कि हमें एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे के अधीन हो जाना। And the third thing is we need to be lifting one another up. तीसरी बात यह है कि हमें एक दूसरे को ऊंचा उठाना है। There is no competition in the family. और परिवार में कोई स्पर्धा नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा नहीं है। See, the world is creating a false identity called salary. और पूरी दुनिया में एक नई पहचान बन रही है और वो है आपके पगार, आपकी सैलरी। And so people are weighing themselves, weighing their identity by how much do you earn. और इसलिए हमेशा लोग एक दूसरे की पहचान इसी बात पे बनाते हैं कि तुम्हारी पगार क्या, तुम कितना कमाते हो। So the more you earn means the more you are well established. और इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप कमाते हो उतना ही अच्छे आप बन चुके हो, अपने आप को अपने साबित The more you have power. उतना ही ज्यादा आपके अंदर ताकत है। The government has raised, now we have the 7th pay commission. Thank God for that. But what I'm saying is, salary does not give you an identity. It is a false identity. So when the woman is making more money than the husband in the world, it is not an identity that I am higher than you. और इसका मतलब ये है कि पगार से हम कितना कमाते हैं उससे हमारी पहचान नहीं बनती है। अगर परिवार में पत्नी पति से ज्यादा कमाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी पहचान तुमसे ज्यादा बड़ी है या मैं तुमसे ऊपर हूँ। Sometimes money is used as a pawn to destroy relationships. और कई बार ऐसा होता है कि पैसे का आर्थिक बातों की वजह से संबंधों में बहुत दरार आती है। It is not my salary, it is not his salary, but it is something together that God has given to us. मेरी पगार या मैं कितना कमाती हूँ या वो कितना कमाता है वो बात नहीं है, लेकिन हम दोनों की साथ में जब पगार मिलती है तो उसके बाद हम जो साथ में मिलके कमाते हैं वो बात वहां पर आती है। In every wedding I have done, I have asked the couples to start a joint account. और जहाँ कहीं भी मैंने विवाह की सभा में हिस्सा लिया है, मैंने उनको बोला है कि आप साथ में मिलके एक अकाउंट खोलिए। And sometimes the women have been shocked.
और कई बार जो है बहनें उनको अचंभे में पड़ गई है। And usually the ones who earn money are shocked. How can I share my money with my husband? और खास करके जो लोग ज्यादा कमाते हैं वो ऐसा सोचते हैं, महिलाएं खास करके ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने पति के साथ अपनी कमाई कैसे बांटूंगी। This is my money. I work hard. I earn my living. मैं मेहनत करती हूँ, ये तो मेरा पैसा है। बहनों, आप कमाती हैं, अच्छी बात है, खूब कमाइए, लेकिन कमाने के आधार पर आप घर पर प्रभुता नहीं रख सकते। आप इस बात को, Sisters, you may earn a lot of money, your income may be higher than your husband, but on the basis of your income, you should not lord it over in your houses. The income has to come on a common table, and that should be a common identity, saying God has given us in these hands. How should we use it together? और आप दोनों की कमाई है वो साथ में मिलके प्रभु के सामने आनी चाहिए, और फिर उसमें से आप बताना चाहिए कि हम दोनों मिलके साथ में इस कमाई के द्वारा प्रभु को कैसे महिमा दे सकते हैं। Men, don't give this rash statement. I'm running the house. I'm bringing the salary. I'm bringing the money. No, it is God who is giving you the grace to earn the money. और पुरुष जो लोग हैं, आप ऐसा मत बोलिए, आप ऐसा अचानक से ऐसा विधान मत बोल डालिए कि मैं कमाता हूँ, मैं ही घर चलाता हूँ। परमेश्वर की सहायता से आप और वो दोनों मिलके घर चलाते हैं। आप कमाते होंगे 40,000, 50,000, 55,000, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ना कमाए तो भी खुदा आपके घर को चला सकता है। You may be earning 40,000, 50,000 a month, but even if you don't earn, God can run your house. लेकिन प्रभु ने आपको धन दिया, उसके लिए प्रभु को आप धन्यवाद दीजिए, लेकिन घमंड का कारण मत बनाइए कि मैं घर चलाता हूँ। God gave you money, so praise God. God gave you wealth, praise God. But do not be proud. Do not take pride in your income. Why am I sharing it this morning? आज सुबह में ये बात क्यों बता रहा हूँ? There has to be a contrast, a clear, clean contrast between a godly home and a home that does not know Jesus yet. मैं ये बात खास रूप से बताना चाहता हूँ कि जिन परिवार में यीशु मसीह को जानते हैं वो, और जो परिवार यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए। You have to take care, men. You have to take care of your tongue, the way we speak, the way we talk, the way we talk about our family. And our children. पुरुष लोग हम कैसे बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, उन सारी चीजों की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। हमारी जुबान से क्या निकलता है उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। That's why if you ever remember, I always ask the men in the church to be louder, to be giving praise, because you are the priests of the house. What you do will determine the spiritual direction of your home. और इसीलिए मैं पुरुषों को खास कहता हूँ, जब सभा होती है तब भी और जब आराधना होती है तब भी, कि अपना मुंह खोलकर प्रभु को आशीष दे, क्योंकि आप जो है वो घर के याजक है, और आप जो करते हैं उसका सारा असर अपने परिवार पे पड़ता है। अगर आपका हाथ स्तुति में नहीं उठेगा, यदि आपकी मुंह स्तुति में नहीं उठेगी, लिख के ले लो स्टैम्प पेपर में कि आपके बच्चे भी उससे भी कम करेंगे। If you can't raise your hands in worship, if you can't open your mouth and praise God in worship, then I want to tell you that your children will follow you. क्योंकि आपको पापा को बच्चे लोग देखते हैं। Because children often look for the parents. आत्मिक मामले में आपको खुशी है, आत्मिक मामले में आपको जोश है, आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं, जरूर आपके बच्चे आपके पीछे पीछे चलेंगे। But if your joy is in spiritual things, if your delight is in the Lord, then your children will also learn that from उसी you. प्रकार बहनों, अपने बच्चों को, ऐसा लिखा है कलाम के अंदर, उनको रिस मत दिलाओ, उनको ठोक कर, चिढ़ कर, चिढ़ा कर आपके बच्चों को आप अपना दुश्मन मत बनाओ। And it says, the word of God also says that do not make your children your enemies. Talk softly to them. Talk softly to उनसे them. नम्रता से बात करें। If they are not behaving properly, talk to them. Give them the guidance. और अगर वो ठीक से कुछ व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो आप उनको मार्गदर्शन दें। And if they're still not agreeing, talk to me. और अगर वो फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे तो आप मुझे बताइए। अंग्रेजी में बोलना, बड़ी स्टडी लेकर आऊंगा और बाकी बात मैं कर लूंगा। But I want to encourage you this morning that a godly home, our home, your home has to be the reflection that Jesus has changed my life, our life. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में एक दूसरे के साथ संबंध जो है वो इस बात को बताने चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं 15 बार प्रभु से पूछा, प्रभु आप ये संदेश मुझे बोलने के लिए क्यों बोल रहे हैं? संडे को आप मुझसे क्यों बोल रहे हैं बोलने के लिए, जबकि दूसरा संदेश पूरा आपने दिया, तैयार है। लेकिन प्रभु बोलता है, मुझे नहीं मालूम किसके लिए है, शायद मेरे लिए बोल रहा हूं। मुझे अपनी पत्नी से प्रेम करना है, मुझे अपनी पत्नी का आदर करना है, नंबर 3 मुझे अपनी पत्नी के अधीन रहना है।
And I Yes. was wondering why I should preach this message on Sunday, because I had another message ready, but I think God was speaking to me and God wanted to speak to some of you who are going through this situation. And God has taught me personally that I need to love my wife and I need to respect her and I need to submit to her. हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट्स होती है. There is a boundary for everything. And we have boundaries in the Word of God that will protect your family. That will, if you're in the boundary, the family will flourish, and God's grace and peace and charis would be upon it. और परमेश्वर की जो परिवार के लिए योजना है उसमें भी एक सरहद है, एक मर्यादा है, एक सीमा है, जिसके अंदर आप अगर अपने परिवार के साथ रहते हैं तो आपके परिवार परमेश्वर की योजना के अनुसार उसमें फलवंतता होगी, आशीष होगी. How many are married? Can I see your hands? कितने लोग शादीशुदा हैं? Good. How many are not yet married? Can I see your में से hands? कितने लोग शादीशुदा अभी जिसकी शादी नहीं हुई है? सबकी हो गई, मतलब मालूम नहीं पड़ रहा हमको, सीक्रेट में हो गया था. Good, put it down. I'm encouraging those who are married and not married. We want to encourage you, live godly lives, live biblical lives, live your lives according to the word of God. जिसकी शादी हुई है वो भी और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी, आप सबको मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र जीवन आप बिताइए. If you are the only one in church and your other half is not in church because many reasons, it's time to pray and believe God for their deliverance, for their salvation and for their coming home again. और कोई भी कारण की वजह से अगर आप इस कलीसिया में आए हैं लेकिन आपकी पत्नी, आपके पति यहाँ पर नहीं आए हैं, तो समय आ गया है कि आप अपनी पत्नी के लिए और अपनी पत्नी के उद्धार के लिए प्रार्थना करें. आमीन बोलना चाहते हैं आप लोग इस बात के लिए? आमीन बोलना चाहते हैं? 3 बातें कुल मिलाकर, बाकी सारी छोड़ रहा हूं मैं. 3 बातें. पहला, पति पत्नी आपस में एक दूसरे से प्रेम. So in conclusion, 3 points. Number 1, husband and wife love one another. बोलिए, हमें पति पत्नी को आपस में प्रेम करना है. बोलिए. Just repeat after me. नहीं बोल रहे आप लोग, क्योंकि तुले हुए नहीं करेंगे हम लोग. Sisters can say I need to love my husband and a man can say I need to love my wife. बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए. ओह हाँ, इसलिए मालूम पड़ा संदेश क्यों दिए, जो घुस नहीं रहा है. नहीं घुसेगा, लेकिन घुसेगा क्योंकि प्रभु चाहता है आपका परिवार प्रभु की महिमा का कारण बन जाए. God wants that your family will become a reason for blessing and for the glory of God. हालेलुया. आइए अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं. Let's all pray. We going to pray this morning that God's hand would be upon you. आज सुबह हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हो. We want to pray that God's blessing would be upon your families. हम ये प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की आशीष आपके परिवार में. We want to pray that God's touch would be upon your future partners. हम प्रार्थना करेंगे कि आपके भविष्य में जो भी परमेश्वर आपके जीवन में पति या पत्नी लाने वाले हैं उनके ऊपर परमेश्वर का अनुभव हो. Don't worry, God has a plan to give you the best partner. God has His plans and He will bring it to pass. परमेश्वर की योजना है कि आपको सबसे उत्तम सर्वोत्तम सहभागी देना, और इसलिए वो अपने समय में वो करेगा. We believe you don't have to be running around trees, you don't have to be running around men and women. It's just follow the path of God. God will give you the best partner. हम ये मानते हैं कि आपको पेड़ के आगे पीछे दौड़ने की या किसी और के पीछे SMS करने की, ईमेल करने की, किसी और के पीछे आगे सागर में मिलने की, न उस पेड़ के नीचे मिलने की जरूरत नहीं है. बोलो, ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है. परमेश्वर के पीछे चलिए, वो आपकी जरूरतें पूरी करेगा. चिट्ठियां बना रहे हैं, डाल रहे हैं, मिल गया क्या, नहीं मिला क्या, दूसरा लिखूंगा, छोड़ो. प्रभु पर विश्वास करो, धार्मिकता से चलो, समय पर प्रभु आपको जीवन साथी देगा. You walk after the Lord. If you walk after Him with your heart committed to Him, God will give you a life partner in His own time. परस्पर प्रेम करना है. Love one another. Number 2, Second point, परस्पर आदर करना है. respect one another. पुरुषों पत्नियों को रिस्पेक्ट करना है. Husbands respect your wives. मैं सोचता हूँ मैं कुछ लोगों को चिढ़ा रहा हूँ यहाँ पर. And I feel like I'm Annoying people. instigating some people or annoying some मैं people. आपको इतना ही बोल रहा, अपनी बाइबल से बोल रहा, अपनी पत्नी का आदर करो. And I'm speaking from the word of God. Respect your wives. शुरू में आर्टिफिशियल लगेगा आपको ही. And sometimes you may feel it's so artificial. आपको लगेगा मैं आज तक नहीं किया. And you may think I have never done this before. लेकिन प्रभु आपको अनुग्रह देगा व्यवहारिक रूप में कैसे आप आपकी पत्नी को आदर कर सके. पत्नियों अपने अपने पति का आदर करिए. God will give you grace to respect your wife in daily activities, and wives you also learn to respect your husband. तीसरी बात मैं भूल गया. And third point, एक दूसरे के अधीन रहो.
submit to one another. आदर करो दूसरा है, लेकिन एक दूसरे के अधीन। चलिए आपके पास को बोलिए, तीनों पॉइंट बोलिए, जो पास बैठे उनको बोलिए। वो भूल गए, उन्होंने सुना ही नहीं, वो स्विच ऑफ हो गया। Repeat these points to the person sitting next to you. Some are dreaming right now. I wish I had a dream family. और मैं सोचता हूँ कि कुछ लोग तो यहाँ पे सपना देख रहे हैं, सपने का परिवार, सपने जैसा परिवार ऐसा You already are married. You are already married, but you are dreaming. I wish I had a something that would work, that is working in my home. और आपका परिवार तो है, आपकी शादी भी हो गई, लेकिन आप सोचते हैं कि काश इससे भी अच्छा, ऐसा जिसमें बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, ऐसा परिवार मेरा होता। We want to guarantee you, no. It's not going to get worse. It's only going to get better if you will believe God and walk in the Word of God. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि और भी बातें अच्छी होती जाएगी। ये जो परिवार आपका है और भी अच्छा होता जाएगा अगर आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं। इस मेज के सामने हम आपको कहना चाहते हैं, आपके घर का व्यवहार छोड़िए, चर्च का जीवन छोड़िए, संडे का जीवन, आपका घर का व्यवहार, उठना बैठना कैसा है, उसके आधार पर आज मेज आप लीजिए। And I want to tell you right in front of this table that what is your life? How is your life as a family, as a person in the family? And depending on that, I want to invite you to the Lord's table today. बच्चों, आप अपने माँ बाप का आदर कर पा रहे हैं क्या? Children, are you able to respect and love your parents? क्या आपके माँ बाप आपके प्रेम और आपके रिस्पेक्ट को देखकर आपके लिए आशीष की दुआएं कर रहे हैं? Do your parents pray for you when they see love and respect from you? Do they pray for you? हॉस्टल के बच्चों, आपके वार्डन्स, आपके जो अधिकारी लोग हैं, आपके कारण प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं क्या? The hostel children, I want to ask, do your authorities, the superiors really thank God when they see you? Teenagers, क्या आपके माँ बाप आपको देखकर प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद दे रहे हैं या दुख के आंसू बहा रहे हैं? आप जवाब दीजिए। Teenagers, I want to ask you, when your parents see you, do they praise God, do they thank God, or they are weeping, or are they weeping? In the presence of God, I want to encourage the youngsters also. बाइबल में लिखा है, अपने माता पिता का आदर करिए, इसमें आशीष आते हैं। Bible says respect your parents, and that's where you find blessing. उनका आदर करिए, आशीष उसके अंदर है। And when you respect your parents, when you submit to them, you get blessings. उसके अंदर चंगाई है। And that's where you get healing. उसके अंदर अनुग्रह है। That's where you get grace. उसके अंदर प्रबल है। That's where you get provision. आमेन बोलते हैं आप लोग मिलकर जोर से। Amen. क्या था संदेश, भूल गए आप लोग? भाई लोग बताइए, 3 बातें। नंबर 1, okay, प्रेम करना है, आदर करना है और आदरीन रहना। बहने बताइए, what are 3 things? आदर करना है, प्रार्थना करें हम प्रभु का अनुग्रह जी आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। और मैं आपको एनकरेज करता हूं कि दीवार नहीं हुए हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन साथी के लिए धन्यवाद जो तूने तैयार किया है। आप खुल के प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को मालूम है कौन है, वो क्या है। मिलकर अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। परिवार के लिए we are praying this morning for families to be strong, families to be healthy, families to be reflecting the glory of Jesus. आज सुबह हम प्रार्थना करने वाले हैं कि परिवार के ऊपर आशीष आए, परिवार जो है मसीह का स्वभाव उसके अंदर से दिखे और परिवार और भी लोगों की योजना में आए। It is our desire that as you come to Jesus, you will not only receive salvation, but in salvation you will receive the fullness of Jesus, which includes your family. और हम ये भी चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि जब यीशु के पास आते हैं तो सिर्फ आप उद्धार ही नहीं, लेकिन उद्धार के साथ साथ मसीह की संपूर्णता जो आपके परिवार भी उसमें शामिल है, वो संपूर्णता को आप पाएं। I feel in my heart this morning that we want to pray for people who want to help families, who want to help couples. और आज सुबह हम इसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जो परिवारों को या जो शादीशुदा है उनको परामर्श देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। We want to pray and release families that they can help other families, help other individuals to be stronger in the Lord. परिवारों को सहायता करना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि वो दूसरे परिवारों को सहायता करने पाए और दूसरे व्यक्तिगत लोगों को भी सहायता करने पाए। It's very easy to tear somebody down with your words. और बहुत आसान है आपके शब्दों से आप किसी को नीचा गिरा दें। Something is wrong, it's happening in a family. It's very easy to talk about it, talk bad about it, but it's very hard to go and help them and stand with them. परिवार में अगर कुछ होता है तो बहुत आसान है वहां जाना और वहां के लोगों को झाड़ना या डांटना या किसी और के साथ इस परिवार की बातें करना, लेकिन बहुत मुश्किल है उस परिवार तक जाना और उनको परामर्श देना। कौन आज सुबह इससे उठाए के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता है?
want to submit themselves for this ministry today. It's your prayer. If it's your prayer, Lord, I have a broken life, but I want to be a healing to families, Lord. ये आपकी प्रार्थना हो सकती है कि प्रभु मेरा खुद का जीवन टूटा हुआ है, लेकिन मैं प्रभु परिवारों को जोड़ने की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं प्रभु दूसरे परिवारों के लिए आशीष बनना चाहता हूँ। और I want to be a blessing for other families. आप शर्मिंदा नहीं होना, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Pray for you. You want to release some people this morning to be ministering to couples in this church, to be ministering to newlyweds, to be ministering to broken homes who are in ruins, whether believers or unbelievers. We want to pray for you and set you apart for this ministry. ऐसे परिवार हैं जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, चाहे विश्वासी हो या विश्वासी ना हो, लेकिन ऐसे परिवारों के बीच में सेवकाई करने के लिए आज हम यहाँ से लोगों को भेजना चाहते हैं प्रभु के नाम में। I want to encourage you. If you're the only one in the home, come down. We will pray for you. The church will bless you, and you will have a blessed ministry in that life. तो बताना चाहता हूँ कि अगर आप परिवार में से अकेले यहाँ पर आए हैं, तो घबराइए मत, आप आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपको कलीसिया से यहाँ से भेजेंगे। It's a desire to help families. Come down. अगर आपकी इच्छा है कि आप परिवारों को सहायता करें, तो आगे आ जाइए। And if you're already doing that, you are welcome. और अगर आप कर रहे हैं ये बात, आप आगे आ सकते हैं। God bless you. Please stand here. Pray, people who want to pray, come quickly. जो प्रार्थना करते हैं आप लोग सामने आइए, हम इनके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। We are releasing families to help families. We are releasing individuals to help individuals. परिवारों को, व्यक्तिगत लोगों को छोड़ते यहाँ से भेजते हैं ताकि व्यक्तिगत लोग व्यक्तिगत रूप में, परिवार के लोग परिवारों को सहायता करने पाए। The devil is speaking into your ears. You don't have a functional family. You don't have a right kind of family. How can you go and help? Tell the devil, I want to help because Jesus will help me. शैतान आपके कान में शायद आके ये कह रहा है कि तुम्हारा खुद का परिवार तो टूटा हुआ है, तुम्हारा खुद का परिवार मुश्किलों में है, तुम कैसे दूसरों की सेवा करोगे? लेकिन आप उनको, शैतान को बता दीजिए कि यीशु मुझे इस बात को करने के लिए सहायता करेगा। Anybody else? कौन और कोई है क्या जो परिवारों को दृढ़ करने की सेवा करना चाहता है? साबाना सोरो को Young man, commit yourself to helping the families, broken families. We need ministers, people who will minister. We need people who will minister in this church. ऐसे लोग चाहिए जो इन परिवारों की सेवा करने पाए। We need people who will help other families. ऐसे परिवार चाहते हैं जो दूसरे परिवारों की सेवा करने पाए। We need people who will help other broken families. ऐसे परिवारों को चाहते हैं जो दूसरे टूटे हुए परिवारों की सेवा करने पाए। We need people who will stand with fallen families, accused families. We need people in this church. ऐसे परिवारों को चाहते हैं जो जिन पर दोष लगाया गया है, ऐसे परिवारों को जो टूटे हुए वैसे परिवारों को खड़ा करने में सहायता कर पाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आँख खोल के मत देखिए, प्रार्थना करिए। आज सुबह क्या मालूम प्रभु आपके सेवकाई के लिए अदा करेगा। I want to encourage you to close your eyes and pray. Who knows, the Lord will be leading you to this ministry. सारी महिमा यीशु माइके तुम, सारी महिमा यीशु को दे दो। सारी महिमा यीशु को दे दो। सारी महिमा